Okay, the next topic is mechanism of digestion. Digestion start just after ingestion. जैसे ही हम फूड को लेकर के माउथ के अंदर रखते हैं, that is ingestion, and just after ingestion digestion starts. Inside the mouth, as we have discussed earlier, there are three pairs of salivary gland, tongue, and teeth. There are four types of teeth: incisors, canine, premolars, and molars. Teeth क्या करते हैं? Teeth are meant for the mastication of food, and that is a form of physical digestion. तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. जैसे माउथ की हम बात करें तो माउथ, इनसाइड द माउथ व्हाट हैपन, माउथ के अंदर पहले क्या है हमारे पास? टेथ. एंड टेथ आर द मेड फॉर द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. मैस्टिकेशन ऑफ फूड. मैस्टिकेशन का पर्पस क्या होगा? फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है. इमेजिन करो फूड जो है वो हमारा, दिस इज अ पोर्शन ऑफ फूड, और अब इसके चारों तरफ जो एंजाइम्स हैं वो काम करेंगे. ये एंजाइम इसको कवर करते हैं इसके अंदर की कंटेंट को डाइजेस्ट करने के लिए. दिस इज अ बिग पोर्शन ऑफ फूड. नाउ अब अगर इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया गया, नाउ सेम पोर्शन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. नाउ व्हाट हैपन, नाउ द एंजाइम्स हैज ब्रॉडर एरिया टू एक्ट. अब एंजाइम इसके ऊपर काम कर रहा है तो क्या होगा? एंजाइम को काम करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, एंड इन दैट केस डाइजेशन विल बी इजी. So therefore food is meant for the mastication of food, and which is called physical digestion, and after that saliva mixes and the chemical digestion starts. तो mastication of food हो गई. इसके अलावा फिर अब हमारे पास फिर next we have salivary glands. Salivary gland. Salivary glands secrete saliva. Three pairs of salivary glands are there, as we have discussed earlier, and they secrete a liquid which is called saliva. The pH of saliva is slightly acidic. अगर इसकी pH की हम बात करें तो pH is slightly acidic, that is 6.8. pH is a scale on which we can find out which substance is acidic, basic or neutral. If the value of pH is 7, then the substance is neutral, neither acidic nor basic, and if it is below 7 then it is acidic. 7 से जितना नीचे होता जाएगा it will become more acidic, and if it is above 7 then it is basic. तो here the value of pH is 6.8. तो saliva जो है वो slightly acidic होता है. अब saliva का function क्या होगा? saliva की function क्या होगी? saliva makes the food soft. makes the food soft. फूड को सॉफ्ट बनाता है. एंड देन सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है सैलिवरी अमाइलेज. सैलिवरी अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को स्टार्ट करता है. सैलिवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है. बेसिकली जो इसमें जो स्टार्च वगैरह है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है. तो सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम सैलिवरी अमाइलेज digest starch. About 3% of starch is digested in the mouth. What happens? This is starch, carbohydrate, and the enzyme salivary amylase. Salivary amylase, which convert it into maltose. And its pH is about 1.8. Tongue is also responsible in case of digestion. It has also a role to play in the process of digestion. The movement of tongue mixes the saliva properly with the food, and then after food comes into this small passage. Now we look here. This is a part of the windpipe. From here, windpipe starts. Here it is. Here there is a flap-like opening which is called epiglottis. Glottis is responsible for closing of windpipe whenever we swallow the food. हम जब फूड को swallow कर रहे हैं तो फूड फिर फूड पाइप के साथ साथ विंड पाइप में भी जा सकता है. तो जैसे हम फूड को swallow करते हैं, यहाँ पे एक flap-like opening होती है, that is epiglottis. और इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लॉटिस. इसको इमीडिएट वो क्लोज कर देता है. नाउ द फूड कैन ओनली ट्रेवल
along with the esophagus, that is the food pipe. The food is swallowed in the form of small ball-like structure which is called bolus. Now the bolus comes into esophagus. Throughout the alimentary canal there is a process of rhythmic contraction and relaxation which is called peristalsis. पेरिस्टालसिस फ्रॉम टॉप टू बॉटम एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा. ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इसके अंदर जो बोलस है वो उस पे क्या होगा, उस पे आपको प्रेशर क्रिएट होगा और इस प्रेशर से दिस इज बोलस और अब ये नीचे की तरफ मूव करेगा. नाउ दिस फूड कम्स इन द स्टोमक. इनसाइड द स्टोमक देयर आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तो नेक्स्ट पोर्शन, digestion in the stomach. Look here. Now in the stomach gastric glands, we can write 35 million gastric glands are present inside the stomach. 35 million gastric glands are present, and gastric glands are of three types. We have three types of gastric glands. Mucus gland, can also write mucus cell, unicellular gland होते हैं, या goblet cell. Then after we have oxyntic cell, oxyntic gland, and then we have zymogenic cell. Mucus gland secrete mucus, oxyntic cell secrete hydrochloric acid, and zymogenic cell secrete pepsinogen, an inactive enzyme. Gene implies this is not active. ये एक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये काम नहीं कर सकता. The function of mucus is to make a protective layer around the wall of the stomach. Food गैस्ट्रिक ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होने से पहले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यहाँ सिक्रीट होता है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट्स पीएच इज अराउंड 1.3 to 1.8 एंड सच एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इस स्टोमक की वॉल को डिस्ट्रॉय कर सकता है. बिफोर दैट जो म्यूकस ग्लैंड्स हैं उनसे म्यूकस सिक्रीट होता है और ये म्यूकस स्टोमक की वॉल के ऊपर एक लेयर की तरह आ जाता है और जो कि इसको हाई जो गैस्ट्रिक जूस, जो हाई एसिडिक जूस है, उससे इसको प्रोटेक्ट करता है. नाउ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड देन आफ्टर फंक्शन ऑफ HCl, ये डिस्कस करते हैं. फिर क्या होता है, look here. Hydrochloric acid, function of hydrochloric acid, HCl. HCl first of all kills the bacteria present in the food. फूड के अंदर जो कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ये किल करता है एंड देन makes the food soft, and then activates the pepsin. ये पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है. तो क्या करेगा, दिस इज पेप्सिनोजेन और पेप्सिनोजेन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में. नाउ दिस इज एन एक्टिव एंजाइम. अब ये एक्टिव एंजाइम है और ये एक्टिव एंजाइम जो है अब ये आपको फिर प्रोटीन पे एक्ट करेगा. ठीक है. नाउ दिस पेप्सिन, अब ये जो पेप्सिन जो है ये पेप्सिन फिर काम करता है फूड पे और पेप्सिन बेसिकली जो
प्रोटीन है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग, स्टोमक के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है। हालांकि कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए स्टोमक के अंदर कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, बट व्हाट हैपेंस, जो सैलिवरी अमाइलेज था, सैलिवरी अमाइलेज जो है 6.8 की पीएच पे काम करता है, बट स्टोमक तक आते आते उसकी एक्टिविटी काफी स्लो हो जाती है, बिकॉज स्टोमक का जो पीएच है दैट इज हाईली एसिडिक 1.8, बट स्टिल जो सैलिवरी अमाइलेज है थोड़ा बहुत एक्टिव रहता है और धीरे धीरे स्टार्च की डाइजेशन करता रहता है। तो लगभग 3% स्टार्च जो है वो माउथ में डाइजेस्ट होता है और ऑलमोस्ट 27% स्टार्च इज डाइजेस्टेड इनसाइड द स्टोमक, यानी टोटल जो स्टार्च की डाइजेशन 30% माउथ और स्टोमक के अंदर हो जाती है। हालांकि स्टोमक के अंदर स्टार्च के डाइजेशन के लिए कोई एंजाइम नहीं है। अगेन स्टोमक हैज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज विच इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, बट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्योंकि स्टोमक के अंदर फैट की डाइजेशन होती नहीं है, बिकॉज यहाँ पे लाइपेज के एक्शन के लिए प्रॉपर मीडियम होता नहीं है। मीडियम इज हाईली एसिडिक, तो लाइपेज यहाँ पे एक्टिव हो नहीं पाता। तो अब इसमें अब उसके बाद से फिर पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया, और ये पेप्सिन जो है, अब ये पेप्सिन काम करता है प्रोटीन पे, और प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है। नाउ दिस पेप्सिन प्रोटीन पे पेप्सिन काम करेगा और इसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड्स। The food inside the stomach is now in the form of semi-solid structure, which is called chyme. Now this chyme comes into the next part of the alimentary canal, and this is called duodenum. तो जैसे ही फूड अब फिर ये डिओडनम में आया, तो डिओडनम के अंदर अब पैनक्रियास से पैनक्रेटिक जूस और गॉल ब्लैडर से बाइल जूस फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। गॉल ब्लैडर कैन स्टोर ऑलमोस्ट 30 to 60 ml ऑफ bile juice. Bile juice is prepared in the liver but stored in the gallbladder. तो duodenum के अंदर देखते हैं क्या क्या होगा। Now in the duodenum क्या होगा, पैनक्रेटिक जूस एंड बाइल जूस मिक्सेस विद फूड। बाइल जूस की हम बात करते हैं। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, नो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये डाइजेशन में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, बट इट मेक्स द मीडियम अल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं वो जब भी काम करेंगे तो वो आपको बेसिक मीडियम पे काम करेंगे, और ये बेसिक मीडियम प्रिपेयर करने का जो काम होता है वो आपको बाइल जूस का होता है। तो बाइल जूस जो अब यहाँ पे जो पीएच होता है 7.1 से 7.8 के बीच का यहाँ पे पीएच होता है, यानी स्लाइटली बेसिक हो गया ये पीएच जो है इसका, पीएच 7.1 से 7.8 के बीच में। इसके अंदर कोई एंजाइम्स नहीं है, तो फंक्शन इसका क्या होगा, मेक्स द मीडियम alkaline for the action of pancreatic juice. And then emulsification of fat. फैट के जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता है, ताकि जो पैनक्रेटिक जूस के जो एंजाइम्स है वो फिर प्रॉपर ढंग से उसको डाइजेस्ट कर सके। नाउ अब पैनक्रेटिक जूस के एंजाइम अब इस बेसिक मीडियम में काम करेंगे और डाइजेशन करेंगे। अब पैनक्रेटिक जूस में देखते हैं कि क्या क्या होता है। नाउ पैनक्रेटिक जूस, अब पैनक्रेटिक जूस के अंदर जो पैनक्रेटिक जूस पहले अब यहां पे हमारे पास क्या क्या हो गया, पैनक्रेटिक अमाइलेज होता है जो कि अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। पैनक्रेटिक अमाइलेज स्टार्च को स्टार्च पे डाइजेस्ट करेगा माल्टोज में।
दिस इज पैंक्रिटिक अमाइलेज, पैंक्रिटिक अमाइलेज, ठीक है। उसके बाद से फिर अब यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो चुका है, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसको ये फर्दर ब्रेक डाउन करेगा पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स में। काफी हद तक प्रोटीन वहां से डाइजेस्ट हो चुका था, बट इट इज नॉट कंप्लीटली डाइजेस्टेड। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स है ये इसको अगेन पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा, एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड ट्रिप्सिन। डिफरेंस क्या हुआ, पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है और ट्रिप्सिन बेसिक मीडियम में काम कर रहा है। एंड देन इट हैज फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम आल्सो, फैट जिसकी इमल्सिफिकेशन हो चुकी है, दिस इज इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट। और इमल्सिफाइड फैट के अब यहाँ पे एंजाइम्स है हमारे पास, कौन सा, लाइपेज, पैंक्रिटिक लाइपेज, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो कि इसको ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो काफी हद तक डाइजेशन जो हमारी है 80% से 80% तक डाइजेशन जो है वो फिर डिओडम में कंप्लीट हो जाती है। नाउ दिस फूड कम्स इन द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज इलियम। इलियम इज हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, एंड इलियम के अंदर इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं जो बचे कुचे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें भी काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, बट हमें एनसीईआरटी अकॉर्डिंग बहुत डिटेल में से नहीं करना। बेसिकली बचे कुचे जो भी बच गया उसके डाइजेशन करेंगे। नाउ द फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम। इलियम, in case of ileum what happen, intestinal gland, intestinal glands, and these intestinal glands secrete succus entericus, intestinal juice or succus entericus। अब succus entericus में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, डिटेल उसकी नहीं जानना। You can simply digest the food completely. अब इसके अंदर माल्टेज है जो माल्टोज को ब्रेक डाउन करेगा, माल्टोज को ब्रेक डाउन करता है फिर से ग्लूकोज में। फिर इसके अंदर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले डीएनएज और आरएनएज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं जो इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर देते हैं। तो आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन के बाद से हमारा जो फूड है वो फिर लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। डिफरेंट एंजाइम्स जिसमें माल्टोज हो गया, सुक्रेज होता है जो सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, डाइपेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स, पेप्टोन जो पहले हो चुके हैं, उसके लिए हमारे पास इसमें डाइपेप्टाइडेज होते हैं जो फाइनली उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से फूड जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया। नाउ दिस कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड कम्स इनटू दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड कोलोन। नाउ अब हमें करना क्या है, वी हैव टू सिंपली digest out the undigested food. We have to simply remove the undigested food from the body. Then what is the requirement of such a long tube which is approximately 1.5 meter long? Actually undigested food has large quantity of water, और अगर इसको एज इट इज बाहर निकाल दिया जाए तो बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। दैट्स व्हाई जैसे जैसे फूड आगे की तरफ ट्रेवल करता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन यानी जो कोलोन है इसमें से वाटर को अब्सॉर्ब करता जाता है। इसके अलावा कुछ विटामिन वगैरह यहाँ पर अब्सॉर्ब किए जाते हैं। एंड फाइनली अनडाइजेस्टेड फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड इन द रेक्टम। अब इस फूड को फिर यहाँ पे फिर व्हाट हैपन अबाउट डाइजेस्टेड फूड? डाइजेस्टेड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। दिस इज द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच इज कॉल्ड इलियम। वी डोंट हैव टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ इलियम। इलियम के अंदर फिर यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, लैक्टियल्स हैं, जो क्या करता है डाइजेस्टेड फूड को ये अब्सॉर्ब किया जाएगा और अब्सॉर्ब करके इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर डाइजेस्टेड फूड को डाल दिया गया और अब ये डाइजेस्टेड फूड फिर बॉडी के हर सेल्स को, हर पार्ट को सप्लाई कर दिया जाता है। दैट इज, और अभी बॉडी के पार्ट इसको यूज करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे, दैट इज एसिमिलेशन। एंड नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड
comes in the rectum, stored in the form of solid, from where it is digested out through the anus time to time. So this is the complete process of nutrition in human being. In this way, we have completed the topic of nutrition. From the next lecture, we will start about respiration. Thank you.